ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। IDP ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਐਕਸਪਰਟ ਟਾਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ UK ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ UK ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫॉर UK। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ UK ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ जनवरी इनटेक की गल करिए तो क्या वो ऑप्शन है हाइब्रिड इनटेक की? बिल्कुल, आज के टाइम में हाइब्रिड जो है एक सोल्यूशन निकल के आया है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। और मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स आज पढ़ने जाना चाहते हैं दे हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल, बिकॉज कोविड सिचुएशन में कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्लासेस बिल्कुल फेस टू फेस नहीं हो सकती हैं, तो उस सिचुएशन में हाइब्रिड बिकम्स अ वेरी गुड वाइबल ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर स्टडीज़ इंटरनेशनली। और आज के समय में ये है कि अगर स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं, जो एक अच्छा डिसीजन है इस समय जाके पढ़ें वहाँ पर। और हाइब्रिड में ये है कि अगर कोई क्लास किसी वजह से फ़ेस टू फेस नहीं हो पा रही है तो वो उसको ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। UK ने ये प्रोविज़न किया है इस समय कि जो भी क्लासेस हो रही हैं स्टूडेंट्स को हम फेस टू फेस ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन कभी कहीं चैलेंज आता है तो वो हाइब्रिड ऑप्शन में क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। जनवरी इनटेक में डेफिनेटली अगर कोविड सिचुएशन जिस तरह से कम हो रही है, ऑफ कोर्स अगर कम हो जाएगी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट येस गॉड फॉरबिड इफ द सिचुएशन रिमेन्स लिटिल काइंड ऑफ कंसर्निंग अराउंड इट, तो फिर हाइब्रिड एक ऑप्शन हमेशा रहता ही है। वो ऑप्शन हले भी है। ठीक है। आशीष जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ UK क्या प्लेसमेंट या सैंडविच ईयर ऑप्शन ਦਿੰਦਾ ਹੈ अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ਨੂੰ? हाँ जी बिल्कुल दिंदा है। और पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन करना ਚਾਹਾਂਗਾ कि what is sandwich program। सो लाइक यू नो UK ਦੇ ਵਿੱਚ UG ਐਂਡ ਮਾਸਟਰਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਫੋਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ they can apply basis they want to go for ਸੈਂਡਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਇਅਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਰੈਗੂਲਰ 3 ਇਅਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਆਪਟ ਫॉर ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਜੌਬ ਇਨ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ देयर ਚੋਇਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਦ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ a paid internship or it may be unpaid internship also, so it helps students to get ready for the job market by the time they finish their degree. Similarly masters program ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿ normal degree 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, students sandwich degree ਦੇ ਨਾਲ they can have a 2 years master's degree, after completion of which they will be you know immediately absorbed into industry और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ practical experience ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ready for you know getting absorbed into the corporate culture right from day one. Okay. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो आशीष ने कहा, एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है स्टूडेंट्स को जो सैंडविच प्रोग्राम करते हैं, wherever they are working and they spend a year there, ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स उनको वहीं से फिर हायर कर लेते हैं लॉन्ग टर्म असाइनमेंट्स के लिए। सो दैट रिमेन्स अ वेरी बिग पुल फॉर स्टूडेंट्स इफ दे गो फॉर एनी काइंड ऑफ अ सैंडविच प्रोग्राम। आई थिंक दे गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी टुमारो टू वर्क फुल टाइम। ओके, सो इसे गल नाल रिलेटेड अगला सवाल है कि क्योंकि हर कोई स्टूडेंट चाहेगा जॉब जड़ा है प्रायोरिटी रहती है, ऑब्वियसली यू स्टडी फॉर दैट, सो जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स केड़े-केड़े UK च ऑफर होंदे ने? देखिए लार्जली देखा जाए तो प्रोग्राम्स जो स्टूडेंट्स जाते हैं बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम्स करने के लिए,
मास्टर्स इन बिज़नेस है या ऐसे पीजी प्रोग्राम्स है बिज़नेस में, फाइनेंस में प्रोग्राम जो करते हैं, बिकॉज लंदन एज अ सिटी इज़ अ फाइनेंशियल हब, सो बहुत सारे ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास टू गो टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू लुक फॉर जॉब्स। जो बच्चे लॉ एज अ प्रोग्राम चूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, they can also find a lot of internships to pursue programs or part-time work in law area. Architecture is another area where they can look for a lot of part-time jobs. इसके अलावा बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिटेल सेक्टर में बहुत काम करते हैं, बिकॉज पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है, and they can work in retail sector a lot and gain experience, and then they can keep switching these jobs. Okay. अभी उनको लगता है 3 महीने यहाँ पे काम कर लिया, got good experience, they switch to from retail to something else, and then third sector. So it becomes a very good learning experience with, in addition to what you are studying there. ਓਕੇ ਸੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਐਮਬੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕਿਆ ਜੀਮੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਸੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MBA 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ GMAT ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪਲਸਰੀ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MBA ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 2 ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 how is your SOP, whether it justifies the purpose for which you want to do that MBA. And fourth thing is, if you have got work experience, it adds to your chances of getting admission, it gives you some sort of priority. तो इस तरह करके स्टूडेंट्स किसी भी यूके इंस्टीट्यूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ GMAT ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਦੀ। ਆਇਲਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ कुछ और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग है जिसकी ऑप्शन अवेलेबल हों? हाँ, यूके में पढ़ने के लिए देखिए आइल्स अगर इसने किया है या ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एंड आई विल गिव यू आंसर इन टू वे अप्रोच। अगर आप आइल्स देते हैं, अगर इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो भी आप आइल्स दीजिए, क्योंकि कल आप जब एम्प्लॉयमेंट सीख करेंगे देन द एम्प्लॉयर में आस्क यू फॉर आइल्स स्कोर, सो इट बिकम्स ऑल द मोर स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर यू टू हैव अ वेल आइल्स स्कोर। दूसरा ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने अपना इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट डिज़ाइन कर लिया है, विच इज़ अप्रूव्ड बाय यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन, दैट्स पॉपुलरली नोन एज UKVI। सो अगर आप आइल्स नहीं दे रहे हैं किसी वजह से, तो आप इंस्टीट्यूशन जहाँ आपने अप्लाई किया है उनसे चेक करके आप उनका असेसमेंट टेस्ट दे सकते हैं, एंड वीज़ा के लिए वो टेस्ट एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेड है, और उस टेस्ट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही होगा कि आप आइल्स टेस्ट दें, बिकॉज खाली पढ़ाई नहीं, आपको आगे थोड़ा काम भी देखना है, एंड आई थिंक इट विल बिकम वेरी यूजफुल इफ़ यू हैव अ वेल आइल्स स्कोर। ਓਕੇ ਸੋਮਿਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ? I think for the first time traveler definitely it's a tension, but if you're going to UK I think by and large there's no issue, because जो भी ग्रॉसरी की हम बात करते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा इजीली वहाँ पे। किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई स्टूडेंट जा रहा है, वहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर इंस्टीट्यूशंस में भी हैं, एंड विद इन हाफ अ किलोमीटर ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस यू फाइंड ऑल पॉसिबल ग्रॉसरीज, सो वो आपको कोई इशू नहीं है। दूसरा, इफ़ यू वांट टू ऑर्डर एनीथिंग ऑनलाइन, टिफ़िन सर्विसेज जिसे हम बोलते हैं, इंडियन फूड बहुत जगह डिलीवर होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आपको घर का बना हुआ खाना डिब्बे में डिलीवर किया जाएगा, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। 3, there are umpteen choice of restaurants, so if you wish to eat out wherever you want to eat Indian food, if you are so interested to have Indian food only, there's no challenge. Otherwise UK as a country is extremely cosmopolitan, so not just Indian food, but if you want to try multiple other cuisines, I think food is not really an issue for students, and I want to reassure the parents कि from food's perspective and living and safety's perspective there is no challenge, it's a perfectly fine safe place for boys, girls, so there's no worry. ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ IDP UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ।
ਸੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ? UK ਦੇ ਵਿੱਚ mode of transportation is I can bifurcate it into 3 parts. One is UK has got very good local train service, very well connected, good network. UK ਦੇ ਵਿੱਚ tube service ਹੈ which is underground. I mean ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ traveling facility. Then third is bus service is very good, and in bigger cities like Birmingham, Manchester etc. we have got very good network of tram services also. और इन्हां सारियां चीज़ां लई बच्चों के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक जगह तो दूसरी जगह जाना, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स होंदे ने, उन्हां दे फ्रेंड्स डिफरेंट सिटीज़ च रहिंदे ने, तो उन्हां नूं मिलना और सिटी दे विच डिफरेंट एरियाज़ तो जाना is very convenient because of these so many options available to them in terms of local transport. Okay. एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ जो आशीष ने भी कहा, स्टूडेंट्स के लिए एक डिस्काउंट कार्ड बनता है. सो बेसिक जो स्टूडेंट आईडी, यू गेट अ डिस्काउंट कार्ड. सो कहीं भी आपको ट्रैवल करें किसी भी मोड में, एयर, रेल, ट्यूब, अंडरग्राउंड, बस, व्हाटएवर, you get a student discount also. Okay. So that will really give information to a lot of students. So आशीष जी mode of teaching ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ? ਮੋਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਲੋਟ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਡ ਟੂ ਮੇਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ UK ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈ ਮੀਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼. ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ डिलीवरी स्टार्ट करती हुई है. सो स्टूडेंट्स कैन कन्वीनियंटली टेक बेनिफिट ऑफ हाइब्रिड मोड. सो वेयर एवर इंस्टीट्यूशन इज़ डूइंग फेस टू फेस क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. और कई लैक्चर्स वगैरह होंगे ने जिहड़े जिन्हां दे विच बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल तो या जिथे एज ए PG रह रहे हैं उत्थों अटेंड कर सकते हैं. ओके. ਸੋ ਅਮਿਤ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਸੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ UK ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼? बिल्कुल, स्कॉलरशिप डेफिनेटली इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड स्टूडेंट वॉल्यूम्स विच गो टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस. और UK जो पढ़ना जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. हर तरह की स्कॉलरशिप्स हैं. कुछ गवर्नमेंट फंड्स हैं जहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ प्राइवेट ट्रस्ट हैं जहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है, इंस्टीट्यूशंस की अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं. इवन जो प्रोग्राम डीन होते हैं उनके पास भी फंड्स होते हैं जिसको वो स्कॉलरशिप में फ्लोट करते हैं. तो मेरा सजेशन हर स्टूडेंट को यही होगा कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं किसी प्रोग्राम के लिए, प्लीज़ डू कंसल्ट विद आवर IDP काउंसलर टू गिव यू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिक्योरिंग अ स्कॉलरशिप. तो आपको किसी न किसी तरीके से अगर आप इवेल्युएट करेंगे एंड इफ़ यू फॉल इन द क्राइटेरिया ऑफ अवेलिंग अ स्कॉलरशिप और बीइंग एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी. सो चॉइस बहुत ज़्यादा है स्कॉलरशिप्स की. आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके मार्क्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मैच करते हैं. अगर वो मैच कर रहा है तो स्कॉलरशिप का क्वांटिटी बहुत अच्छा है. ओके. सो अमित जी ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ UK ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ IDP ਜੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ? मेरा सजेशन यही होगा कि देखिए, वी आर एक्सटेंसिवली अवेलेबल अक्रॉस पंजाब. आप हमारे ऑफिस में आएँ, फेस टू फेस काउंसलिंग करें. वी आर वर्चुअली अवेलेबल, सो प्लीज़ अवेल दी वर्चुअल फैसिलिटी ऑल्सो फॉर काउंसलिंग. डॉक्यूमेंट्स आप अपने पूरे जेन्युइन रखें, बिल्कुल सही कागज़ रखें अपने साथ. काउंसलर से मिलें, उनको इवेल्युएट कराएं. वी विल असिस्ट यू थॉरली right from counseling to making application and ensuring that you get your offer in time. We will guide you in terms of ensuring that you fill your visa application properly, and once you get your visa we will help you in our pre-departure processes also. So आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप हीथ्रो पे लैंड करते हैं, कहीं भी UK में अराइव होते हैं और जब तक आप इंस्टीट्यूशन पहुंचते हैं. So we literally hand hold a student from scratch to finish when they get to the institution. सो पूरी सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे. एंड मेरा पंजाब के पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ कम एंड अवेल द एक्सपर्ट सर्विसेज विच वी हैव अवेलेबल एट IDP ऑफिसेज अक्रॉस कंट्री. राइट.
अमित जी और आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। उम्मीद करते हैं कि ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी यूके जाके पढ़ना चाहते हैं उन्होंने अज की ये डिस्कशन काफ़ी जी इन्फॉर्मेटिव रही होएगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और हुण इस सैगमेंट विच असीं गल करांगे उन्हां विद्यार्थियों बारे जो कि कैनेडा जाके पढ़ना चाहते हैं। इस लई साडे नाल मेहमान साडे बने हुए हैं। आशीष जी पर साडे नाल बने हुए हैं जो कि डायरैक्टर ने सेल्स एंड ऑपरेशंस। राहुल कुमार जी साडे नाल जुड़ चुके हैं जो कि एसोसीएट डायरैक्टर ने फॉर कैनेडा। सत श्री अकाल जी। सो राहुल जी तुहाडे तो शुरू करांगे। पिछले एपीसोड्स असीं गल कीती काफ़ी सारी जिन्हां बच्चों ने सैप्टेंबर इनटेक लिए अप्लाई किया और फिर हुण काफ़ी जगह तक क्लासेस होना शुरू हो भी चुकिया ने। इस वेले उन्हां स्टूडेंट्स की जे गल करिए की फाइनल स्टेटस है? हाँ जी, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे थे तो बहुत सारी एप्रीहेंशंस थी लोगों की कि पता नहीं वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, स्टूडेंट्स ट्रैवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वीज़ा की डेडलाइन क्या होगी। बट फॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड देयर वीज़ा वे आर एबल टू ट्रैवल टू कनाडा। और जिन स्टूडेंट्स का वीज़ा नहीं आया उन स्टूडेंट्स के पास भी मल्टीपल ऑप्शंस थी अपने पढ़ाई को, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। सो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा सितंबर इनटेक एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू ट्रैवल टू कनाडा। ओके, सो आशीष जी जिन्हां स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੇ ਹੈਵ ਅਪਲਾਈਡ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਆਈ ਮੀਨ ਈਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ थ्रू इनडायरैक्ट रूट्स वो कैनेडा पहुँच के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। और जेडे स्टूडेंट्स का वीज़ा लेट आया है दे हैव आल्सो स्टार्टेड देयर क्लासेस ऑनलाइन सो दैट उन्हां चो किसी भी बच्चे का टाइम नहीं वेस्ट होया एंड दे हैव बीन एबल टू मेक बेस्ट आउट ऑफ द सितंबर 21 इनटेक। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ जो अभी आशीष ने बोला कि जिन स्टूडेंट्स का वीज़ा नहीं आया है एंड दोज हु हैव स्टार्टेड देयर क्लासेस ऑनलाइन फॉर द सितंबर इनटेक, उनके पास अभी भी ऑप्शन खुला है कि जैसे ही उनका वीज़ा आ जाएगा दे विल बी एबल टू ट्रैवल टू कनाडा इमीडिएटली। तो अभी वो अपने घरों से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और जैसे ही वीज़ा आ जाएगा दे विल बी एबल टू टेक अ फ्लाइट एंड गो टू कनाडा। बिल्कुल, सो हालात क्योंकि कोविड दे हुण काफ़ी नॉर्मल हो गए, सो ये ऑप्शंस उन्हां कोल है और उम्मीद की जा सकती है स्टूडेंट्स वालों कि जल्दी ही सॉर्ट हो जाएगा, वीज़ा जल्दी ही अवेलेबल होंगे? हाँ जी बिल्कुल। इनफैक्ट कई लोगों ने जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी थी उनका वीज़ा आ गया और फिर वो ट्रैवल भी कर गए। सो इट इज़ हैपनिंग। ओके, सो आशीष जी हुण कैनेडा ਲਈ क्योंकि सब तो बड़ा चैलेंज सी डायरैक्ट फ्लाइट्स ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ क्योंकि ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ कि 26 सितंबर तो एयर कैनेडा has started direct flights between Canada and India and in addition to this there are a lot of other airlines which are having indirect flights। so ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ break ਤੋਂ ਬਾਅਦ you can you know after 1 or 2 breaks you can move to Canada। ओके, सो जिन्हां स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ, लेकिन क्या हाले भी क्वारंटीन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ ਦ ਨਿਊ ਅੰਡਰ ਨਿਊ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਗॉट ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ they have to inform their institutions and they have to update their status in ArriveCan app। और ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्वारंटीन करना पड़ेगा एज पर द गाइडलाइंस ऑफ दोज पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस। ओके, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सितंबर इनटेक। तो मैं जो अभी आशीष ने बोला उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि जब हम सितंबर इनटेक की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी अनसर्टिनिटी थी कि क्या होगा, पता नहीं था लोगों को। लेकिन फाइनली सब अच्छा हो गया, सब सॉर्ट आउट हो गया, स्टूडेंट्स वेर एबल टू ट्रैवल, देयर स्टडिंग इन कनाडा। जिन स्टूडेंट्स का वीज़ा नहीं आया है उनके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 वो अपना एडमिशन डिफ़र करा सकते हैं नेक्स्ट इनटेक के लिए। नंबर 2 जैसा मैंने बताया कि वो ऑनलाइन शुरू करके और जब वीज़ा आ जाए तो ट्रैवल कर सकते हैं। और नंबर 3 विड्रॉ कर सकते हैं। बट इन तीनों में से जो सेकंड ऑप्शन है जो कि आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं देन यू कैन ट्रैवल लेटर, वो अब मोर लेस ख़त्म हो गया बिकॉज क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो गए। तो जिन स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा है और जो वीज़ा के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं, माई सजेशन टू देम वुड बी टू इमीडिएटली रेफर टू द जनवरी इनटेक। और एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स को अब आफ्टर 5 इनटेक्स, क्योंकि जब से कोविड आया तब से बहुत सारी अनसर्टिनिटी अब पिछले 5 इनटेक के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हैव कंप्लीट क्लैरिटी कि जनवरी इनटेक के लिए उनको क्या करना है, फ्लाइट्स हैं कि नहीं है, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। सो आई थिंक इट इज़ अपॉर्चुन टाइम फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू गो एंड स्टडी इन कैनेडा। ओके, सो एक ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल।
ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਐਪ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੂਡੈंट्स ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ जानना चाहिए और क्यों जानना चाहिए? ओके तो जो भी स्टूडेंट्स अभी ट्रैवल कर रहे हैं कनाडा, उनको बेसिकली एक ऐप है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का जिसका नाम है अराइव कैन। उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी पड़ती है, अपने ट्रैवल प्लान्स, अपने क्वारंटीन प्लान्स, अपना वैक्सीनेशन स्टेटस, अपना मेडिकल रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग। तो जैसे हमारे यहाँ आरोग्य सेतु होता है ना, इट इज़ सिमिलर टू दैट बट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जो इंडिया से स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डालें। डायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हैं तो वो वाली इन्फॉर्मेशन, एंड इट हेल्प्स द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा टू अंडरस्टैंड कि ये वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, इसको क्वारंटीन में डालना है कि नहीं डालना है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस, और ये आगे भी चलेगा। सो फ्यूचर लिए भी मतलब ज़रूरी रहेगा या फ़ायदेमंद होगा? हाँ जी बिल्कुल, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म अभी चाहिए होगा ये। अभी जनवरी इनटेक के लिए, उसके बाद मई इनटेक के लिए स्टूडेंट्स विल नीड दिस। माय सजेशन टू स्टूडेंट्स इज टू अंडरस्टैंड, विल बी टू अंडरस्टैंड व्हाट अराइव कैन इज एंड कैसे इसको यूज़ करना है, ये पहले कंफर्टेबल हो जाए। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ हाँ जी just to बिल्कुल, keep a track। एब्सोल्युटली। ਓਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 22 ਇਨਟੇਕ ਦੀ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਕਿਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ, देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिन्हां दी डेडलाइंस अजे भी ਹਨ ओपन ने to make applications for January intake, but number of seats ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਲਈ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਲੈਣ। ओके, सो राहुल जी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर डिफरिंग देयर एडमिशंस फ्रॉम सितंबर इनटेक टू जनवरी इनटेक, सो उन्होंने तुसी की सजेशन दोगे? हाँ जी, देखिए इसमें हो क्या रहा है ना कि कई लोग जो सितंबर से जनवरी में डेफर करना भी चाह रहे थे, होता क्या कि सितंबर इनटेक इज़ द लार्जेस्ट इनटेक इन कनाडा। सब ज़्यादा कोर्सेज, ज़्यादा इंस्टीट्यूशन सितंबर में अवेलेबल होते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स ने जो सितंबर में प्रोग्राम लिया होता है वो जनवरी में नहीं मिलता है, तो स्टूडेंट्स डेफर करना भी चाहते हैं तो उनको ऑप्शन वो वाला होता ही नहीं है जनवरी में। तो उन स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको उसी जो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करा है वैसा ही एक दूसरा प्रोग्राम मिल रहा हो उसी इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन में भी, तो यू शुड हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि हम स्विच कर सकें प्रोग्राम या इंस्टीट्यूशन, बिकॉज पहले ही इतनी बार डेफर करा चुके हैं स्टूडेंट्स कोविड की वजह से कि ये और टाइम वेस्ट करना, जैसे आशीष ने बोला मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ उसको, और टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो माई सजेशन टू स्टूडेंट्स वुड बी टू कम टू दी IDP ऑफिसेज, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स से मिलें और उनसे चेक करें कि मेरे लिए और क्या नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। और मैं ये स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि प्लीज़ गो फॉर इट, बिकॉज टाइम वेस्ट और नहीं होना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू स्टार्ट योर क्लासेस। बिकॉज हुन सिचुएशन थोड़ी जी नॉर्मलाइज हो रही है कोविड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ट्रैवल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, सो खास कर स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया बट खास कर पंजाब ਦੇ स्टूडेंट ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ स्टूडेंट्स ਜਾਂਦੇ ਨੇ फॉर कनाडा अप्लाई करते हैं। हाँ जी, मैं जैसे आशीष ने बोला ना कि नए स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो टाइम इज़ रनिंग आउट ऑफ हैंड्स, प्लीज़ अप्लाई फॉर जनवरी इनटेक एज सून एज पॉसिबल। जनवरी में अगर नहीं जाना है, आप अभी आइल्स वाले स्टेज पे ही हैं कि आप आइल्स दे रहे हैं, एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मई इनटेक के लिए भी एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, आप इमीडिएटली अप्लाई करें। यूनिवर्सिटीज़ के लिए सितंबर इनटेक भी ओपन हो चुका है, आप इमीडिएटली अप्लाई करें। और जिन स्टूडेंट्स ने सितंबर से जनवरी में डेफर कराना है या सितंबर से मई में डेफर कराना है, दो स्टूडेंट्स शुड हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर उनका सेम प्रोग्राम नहीं ऑफर हो रहा है तो अगर कोई सिमिलर प्रोग्राम है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी है तो वो उसमें ऑप्ट करें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। जी राहुल और आशीष, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिस्कशन के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो व्यूअर्स ने, स्टूडेंट्स ने जोड़े कि हम कैनेडा इनटेक लिए जाना चाहते हैं, उन्होंने उन्होंने कुछ सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सो अज के इस एपीसोड के बस इन्ना ही, अगले एपीसोड के फिर मिलांगे, तद तक के लिए धन्यवाद।